Hello children, today we are going to start a new chapter, chapter 4, operating a computer. In this chapter we will learn steps to start a computer, starting a program, resizing and moving a window, how to shut down a computer. Children, in the previous chapters we have learned about the parts and functions of a computer. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़े थे? About the parts और वो parts कैसे वर्क करते हैं. Now let us learn how to work on a computer. अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं. To start a computer, follow these steps. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. What are these steps? First step is switch on the main power supply button. सबसे पहले हमको क्या करना है? मेन पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑन करना है, प्लग लगाना है और उसको ऑन कर देना है. सेकेंड स्टेप इज स्विच ऑन द यूपीएस बटन. दिस इज यूपीएस. हमको इस बटन को क्लिक करना है. थर्ड स्टेप इज स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू. अब सीपीयू के पावर बटन को हम क्लिक करेंगे. देन स्विच ऑन द मॉनिटर बटन and wait for some time. This is the monitor button. We will click on this and we will wait for some time and you will find a welcome screen of Windows 10. और उसके बाद आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी on the monitor screen. Children, you will enjoy working with Windows 10 as it is easy to use. आपको Windows 10 पे करने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत यूज़ करने में बहुत easy है. Windows 10 is the most popular program that makes a computer work. बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है Windows 10 जिस पे सभी लोग काम करते हैं और बहुत उनको easy लगता है वर्क करने में. The first screen that appears on starting a computer is known as the desktop. जो first screen आपको नज़र आती है when the computer starts is known as desktop. उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? Desktop. This is the desktop. The desktop holds many small pictures known as icons. Now you see so many pictures here. These are called icons. The thin bar at the bottom of the desktop is called taskbar. This is the thin bar at the bottom. This is called as taskbar. When you peep through your bedroom window, you can see different views. जैसे आप बेडरूम में से आप देखते हो विंडो से क्या नज़र आता है? डिफरेंट व्यूज़ नज़र आते हैं. ऐसे ही हमको अपनी विंडोज़ में से डिफरेंट व्यूज़ दिखाई देते हैं. In the same way, you can open and view many programs in the windows like Paint, movies, music एंड गेम्स. ये जो आइकन्स हैं ये आपके गेम्स के भी आइकन्स हो सकते हैं, म्यूज़िक के, प्रोग्राम्स के, सभी तरह के आइकन्स हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू स्टार्टिंग अ प्रोग्राम. अब प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट अस लर्न. टू ओपन द वर्डपैड प्रोग्राम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. हमको वर्डपैड प्रोग्राम ओपन करना है टू डू वर्क. तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो? क्लिक ऑन द स्टार्ट, देन ऑल एप्स, then Windows accessories, and then
WordPad. When you follow these steps, the WordPad window will open. This is WordPad window and this will open. Now come to title bar. The topmost blue bar of WordPad window is known as the title bar. ये जो सबसे ऊपर विंडो है, विंडो के ऊपर ये जो बार है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. नेक्स्ट इज resizing a window. How to change the size of window we will learn here. You can change the size of a window. कैसे करेंगे? Look at the control buttons at the top right corner of the title bar. टाइटल बार के टॉप राइट कॉर्नर पे ऐसे 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं. दिस इज रेस्टोर बटन and this is minimize button. This is restore button or maximize button, or this is close button. First of all, click on the middle or restore button. The WordPad window will become smaller in size. जब भी इस रिस्टोर बटन को आप क्लिक करते हैं तो आपकी विंडोज छोटी हो जाती हैं. और अगेन क्लिक ऑन द मिडिल बटन टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल साइज. जब इस रिस्टोर बटन को वापस से क्लिक करते हैं तो ये वापस से अपने नॉर्मल साइज पे आ जाती हैं विंडोज. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मूव द विंडो. Click on the middle button or restore button. The window will become smaller in size. जब भी हम इधर रेस्टोर बटन को क्लिक करते हैं हमारी विंडोज स्मॉल हो जाती हैं. देखिए स्मॉल साइज की हो गई. क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टाइटल बार. दिस इज टाइटल बार. अब हमने इसको क्लिक किया और उसको होल्ड किया. होल्ड मैंने उसको रोक के रखा. और व्हेन वी मूव, दिस इज कॉल्ड ड्रैग. मूविंग ऑफ अ विंडो इज कॉल्ड ड्रैगिंग. सो ड्रैग द WordPad विंडो टू द राइट साइड. अब इसको हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे. नाउ मूव द पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक वंस. अब उस पॉइंटर को हम डेस्कटॉप पे रखेंगे और एक बार क्लिक करेंगे. द WordPad विंडो बिकम्स इनएक्टिव. WordPad विंडो आपकी इनएक्टिव हो जाएगी, वर्क करना बंद कर देगी और हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स यू कैन ओनली रीड द आइटम्स टू द WordPad विंडो. हम वहाँ पर उसके सिर्फ आइटम्स को रीड कर सकते हैं, हम उसमें वर्क नहीं कर सकते. Now click on the WordPad working area. The WordPad window becomes active. अब हमको वापस से उसके ऊपर क्लिक करना है WordPad के ऊपर और वो वापस से एक्टिव हो जाएगी और हम वहाँ पर उसको वर्क कर पाएंगे. Now how to shut down a computer. जब हमारा वर्क फिनिश होता है तो हमको उसको शट डाउन करना चाहिए, उसको क्लोज करना चाहिए. आफ्टर योर वर्क इज फिनिश्ड यू शुड ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर. सो हियर यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. दिस इज द स्टार्ट बटन ऑफ द मॉनिटर. यस, you have to click here. Then you will get power button. You have to click on the power button. Then click on the shut down option. यहाँ पे आपकी क्या है ये ऑप्शन? शट डाउन ऑप्शन. Now we will click on shut down option. Now then we have to wait for some time till computer turns off automatically. उसके बाद कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा. Then
स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन, उसके बाद हमको मॉनिटर बटन को क्लोज करना है. देन स्विच ऑफ द यूपीएस एंड द मेन पावर सप्लाई बटन. और लास्ट में हमको क्या करना है, यूपीएस को हमको स्विच ऑफ करना है और मेन पावर सप्लाई बटन को भी हमने स्विच ऑफ करना है और फिर हमारा कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा. एंड you should keep in mind that you should always close your computer, shut down the computer after completing your work. That's all for today. Bye bye.